A very good afternoon to one and all. With great joy and exultation, I welcome you all to this on pre- and post-doctoral procedures. This event is jointly organized by IQAC and Research Advisory Board of Hislop College and Place of Higher Learning and Research, CPN Berar College, Nagpur. I am Dr. Mashita Pise, Assistant Professor and Member, Research Advisory Board, Hislop College. I feel privileged to welcome Dr. Milind Bahate, Principal, CPN Berar College, and Dr. Prashant Sheke, Principal, Hislop College, to this virtual session. I also feel great to welcome our resource person for today's session, Dr. Medha Kanetkar. I welcome Dr. Ajay Goel, Vice Principal, and Dr. Pratik Michael, Vice Principal and IQAC Coordinator of Hislop College, and all the team members from both the institutions to this virtual session. As it is said, that we can plan and execute only if we are blessed to do so. Hence, to invoke the blessings of Almighty God, I request Dr. Sudha Dehri to lead us in prayer. Recording in progress. आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये समय देने के लिए प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर हम सीख पाए पिता परमेश्वर की रिसर्च क्या होता है परमेश्वर। जो स्पीकर है प्रभु जी, हम उनको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि हमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी आज के इस वर्कशॉप से पिता। जितने भी टेक्निकल बातें हैं हम उनको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु जी। और पिता हर एक ये वर्कशॉप जो है प्रभु जी, वो उसका हर एक पार्ट स्मूथली जाने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी प्रेजेंट हैं हम उनको भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम में हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं और ये विनती मांग लेते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you, ma'am. One of the key aspects for most of the students who take up higher education is access to proper guidance and mentoring at the right time. Keeping the same in mind, this event was planned. Now I request Dr. Pratik Michael, Vice Principal and IQAC Coordinator, Hislop College, to give the introductory remarks. So, thank you, Dr. Mashita Pise. Well, good afternoon and pleasant evening to all who are present on the virtual platform. Dignitaries, guests, faculty members of both organizing colleges, institutes, research scholars, and my dear students. Let me at the outset extend a very hearty welcome to all on behalf of the Hislop Education Society, the college management, Dr. Prashant Sheke, the officiating principal of Hislop College, Dr. Milind Bahate, the principal of CPN Berar College, Nagpur, the entire Hislop family, the collaborating cells, departments of both the institutes, and on my very personal behalf, especially to Dr. Medha Kanetkar, the coordinator for Place for Higher Learning and Research, CPN Berar College, Nagpur. Thank you very much, Dr. Medha, for accepting to our invitation and for being the resource person for your time and the willingness to be part of this event on pre and post-doctoral degree procedures, a one-day workshop. Let me congratulate the Place for Higher Learning and Research, CPN Berar College, and the Research Advisory Board of Hislop College for picking up a key area. This is really faced by the students
especially in the Vidarbha region where we are. If we look around, there are people or students who want to join PhD or have, say, completed PhD, do not have much exposure to what's happening with respect to the postdoctoral or degree programs. Even for the matter, a lot of research supervisors as well. And this gives a wonderful opportunity and a platform for the various resource persons, for various supervisors and the students to come together and understand what are the key areas that we need to focus when we are in lookout or when we are basically joining the doctoral research program. It is also very important that once we finish our degree program, the doctoral degree program, for us to see and search for avenues and areas to go for postdoctoral programs as well. And what we have observed is our students have very less exposure. I think today's workshop is going to focus on how or what are the requirements for a successful and a good doctoral degree and what lies ahead after you complete the doctoral research. Let me not take much of your time because we have Dr. Megha as the expert to guide us and take us through and explain the small details which are required. So wishing you all a successful and a meaningful workshop. May God continue to bless us all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for setting the vision behind this session so aptly in front of all of us. I now request Dr. Dini Menon to come forward and introduce our esteemed guest, Dr. Medha Kanitkar. Thank you, Dr. Rachita. Good afternoon, everyone. Today we have with us renowned researcher Dr. Medha Kanitkar. She is faculty and coordinator of Higher Learning and Research, CPN Berar, College Nagpur. She had a rich 31 years experience in teaching in various levels. And for her credit, she published 17 research papers on national and international journals. Medha Madam received National Dalit Sahitya Award, also received Best Teacher Award by IIT Nagpur University in 2017. She also received international awards for Best Paper Presentation and Best Manuscript Award by ICSBS Japan. She authored more than 100 books in various subjects. Dr. Kanitkar is member of Board of Examination and also member of Board of Studies at RTM in Commerce. She conducted various sections on soft skill development, research methodology, etc. Besides teaching, she is involved in various other activities on institute level, like assistant editor in national level peer-reviewed annual journal Sanshodhan, organized 9 national level research methodology workshops at CPN Berar College. She is also part of Swachhata Abhiyan mission and tree plantation regularly. So I once again welcome you, ma'am, for today's session, and I request you to enlighten us on today's topic,
pre and post doctoral degree procedure with reference to RTMN. Dr. Medha ma'am. Madam, kindly unmute yourself. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for सभी के माइक अगर म्यूट रहेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि आवाज जो है वो इको हो रहा है। ठीक है। First of all, I am thankful to all dignitaries of Hisraf College, Principal and Vice Principal Sir, Dini Menon Madam, for inviting me as a resource person and organize this collaborative workshop on pre and post PhD or doctoral registration process of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University. जो भी मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछले 11-12 साल से मैं ये प्लेस फॉर हायर लर्निंग रिसर्च के कोऑर्डिनेटर इस प्लेस पे काम कर रही हूँ। और जो भी डायरेक्शंस अभी तक आए हैं तो जो 2021 का जो डायरेक्शन नंबर 11 है उसके मुताबिक मैंने पूरा ये प्रेजेंटेशन रेडी किया है कि जो कि नए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इस साल उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो भी रिसर्चर्स रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और मैडम यस थोड़ा सा आवाज ऐसे डबल आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है मैडम। नहीं, को होस्ट का अगर माइक जो चालू है ना मैडम उनको बंद कर नहीं मैम म्यूट है मैम, उनको रिमूव कर दीजिए आप, है ना अभी। एक मिनट, म्यूट है मैडम। मैं म्यूट ऑल करती हूँ। यस मैम या अब ठीक है। यस मैम, थैंक यू। यस थैंक यू। जो भी ये मैंने प्रोसीजर ये जो पीपीटी मैंने बनाई है वो 2021 का जो डायरेक्शन नंबर 11 आया है उसके मुताबिक किया हुआ है कि जो नए रजिस्टर करेंगे इस साल उनके लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन जो पुराने रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है इनपुट्स देती जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन दिख रहा है मैडम? यस मैडम, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। यस गो अहेड मैडम। ओके, डायरेक्शन नंबर 11 ऑफ 2021। देखिए यहाँ पे मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स दिए हुए, फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम एंड पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। तो पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम कौन करेंगे? जो टीचर्स है, कहीं पे भी टीचिंग का काम कर रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम कंट्रीब्यूटरी, जिनको अप्रूवल आता है नागपुर यूनिवर्सिटी का। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो पार्ट टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो पार्ट टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं एज पर द डायरेक्शन नंबर 11। अब फुल टाइम प्रोग्राम कौन कर रहे हैं? कि जिनको कहीं पे भी वो काम नहीं कर रहे एज ए एम्प्लॉय, वो अगर कहीं पे भी काम नहीं कर रहे तो वो फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। फुल टाइम और पार्ट टाइम का टेन्योर क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पिछले जो 2018 का डायरेक्शन नंबर 37 था वहां पे अगर हम लोग 37 2017 का, तो वहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो वहां फुल टाइम और पार्ट टाइम का वहां पे बाइफर्केशन दिया हुआ था। फुल टाइम प्रोग्राम जो है वो 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स का था, और पार्ट टाइम प्रोग्राम जो था वो 4.5 इयर्स एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर 6 इयर्स ऐसे था। लेकिन अभी इस डायरेक्शन में सभी को टेन्योर जो दिया हुआ है पीएचडी का वो 3 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 इयर्स है। जो भी जैसे भी आता है वो सेक्शन वहाँ पे मैं इलेबोरेट और कर दूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी है मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% और ग्रेड बी। 5% रिलैक्सेशन है टू SC ST OBC कैटेगरीज कैंडिडेट एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन।
जो भी है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 55% से वो 50% तक अगर उनकी मास्टर्स डिग्री है तो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंट्रेंस फॉर पीएचडी जो है कि पेट इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अभी सभी ने पेट एग्जाम दी होगी या देने के लिए रेडी करते होंगे। एग्जाम्शंस कहाँ पे है, तो यूजीसी नेट, स्लेट, गेट, जीपीएटी, डीएसटी इंस्पायर, सेट, टीचर फेलोशिप, एमफिल कौन सा, जो एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, जो पेट एग्जाम होती है उससे पहले पेट 1 और पेट 2 ऐसा था। तो पेट 1 क्लियर करके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे पेट 2 क्लियर नहीं कर पाते थे, तो पेट 1 क्लियर करके वो एमफिल डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी पेट एक ही कर दी है, तो पेट करके अगर जिन्होंने एमफिल किया हुआ है और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे एलिजिबल है, वो एग्जाम्शन है पेट एग्जाम से। और पीएचडी इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी एनी अदर सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है पहले से, तो आपको पेट एग्जाम से यहाँ पे एग्जाम्शन दिया हुआ है। लेकिन पेट एग्जाम एसेंशियल सभी को कर दिया गया है। टेन्योर ऑफ पेट, पहले ऐसे था कि अगर आपने पेट एग्जाम क्लियर करी और उस साल अगर आपका ये नहीं हो सका तो 5 साल तक ही आपका वैलिडिटी रहता था पेट का। अभी क्या हो गया है, वंस द कैंडिडेट हैज क्लियर्ड द पेट, ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू आउट हिज और हर करियर। यानी एक बार आपने पेट क्लियर कर दी तो आप कितने भी साल, अगर आपको कहीं कौन से भी साल में ऐसे लगता है कि मुझे पीएचडी करना चाहिए, तो ये आपका पेट जो इस साल का हुआ है वो आपको वहां पे जो है एलिजिबल रहेगा। कैंडिडेट्स वहां पे और एक उन्होंने क्लॉज डाल के रखा है, जैसे कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड पेट एग्जाम इन द पास्ट shall be considered eligible for admission to PhD program। यानी पहले भी जिन लोगों ने पेट एग्जाम क्लियर करी है लेकिन किसी वजह से पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी ये वैलिडिटी और जो उनके करियर का जो पीरियड रहेगा, पूरे करियर के पीरियड में नॉर्मली हम लोग 60 इयर्स का हमारा करियर समझते हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर 60 इयर्स भी अगर आपको लगता है कि पीएचडी करना है तो यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी इफ वंस यू क्लियर द पेट एग्जाम। ओके, यहाँ पे अगर क्लियर हुआ है तो हम लोग आगे चलते हैं। प्लेस फॉर रिसर्च, all the departments of the university and all other colleges, institutions, organizations duly recognized or approved as the place for higher learning and research by the university। अब यहाँ पे place for higher learning and research का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, वहाँ पे जो 12 यूजीसी का जो 2A 12B का उनका ये होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी का, और नैक में जो उनका ग्रेडेशन है वो B+ होना चाहिए, तो ही उनको प्लेस फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च को मान्यता मिलती है। और वहाँ पे एटलीस्ट 1 सुपरवाइजर जो है रिसर्च सुपरवाइजर होना, जो डिसिप्लिन उनका है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें होना जरूरी है। तो ये तो कॉलेज का मैटर है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ा सा ही यहाँ पे समय दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किए हुए एज अ प्लेस फॉर रिसर्च करके, तो ये आपको आपके रिसर्च वर्क के लिए आप यूज कर सकते हो या उनको उनके पास एडमिशन आप ले सकते हो। सुपरवाइजर अलॉटमेंट कमेटी हम लोग देखेंगे। देयर इज अ सुपरवाइजर अलॉटमेंट कमेटी एट एवरी प्लेस फॉर रिसर्च which consist head of the center, जो भी सेंटर के हेड है नॉर्मली प्रिंसिपल रहते हैं तो वो वहाँ के हेड रहेंगे, और 2 सीनियर रिसर्च सुपरवाइजर्स ऑफ द सेंटर, ये सुपरवाइजर अलॉटमेंट कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। तो उनकी मीटिंग होती है और जो भी आपकी एप्लीकेशंस, आपको अगर पीएचडी करना है और आपने प्लेस ऑफ रिसर्च पे एप्लीकेशंस की है तो उनकी आपकी एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी करेंगी कमेटी, और आपको जो रिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपको जो है गाइड या सुपरवाइजर अलॉटमेंट हो जाएगा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ये भी प्लेस ऑफ रिसर्च पे ही होती है। There is a research advisory committee at every place of research, consist of head or principal, 2 research supervisors nominated by honorable vice chancellor।
जैसे वाइस चांसलर यहाँ पे 2 सुपरवाइजर्स जो है अदर कॉलेजेस के वो यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ उन्होंने और एक क्लॉज ऐसे डाला है कि जो सुपरवाइजर वीसी नॉमिनी होंगे उसमें एक जो है वो सेंटर के ही जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या सब्जेक्ट रिसर्च सुपरवाइजर है वो वहाँ रहेंगे। एक इंटरनल वाइस चांसलर्स नॉमिनी एंड एक्सटर्नल कॉलेज के वाइस चांसलर्स नॉमिनी वहाँ पे रहेंगे, जो RAC में कंसिस्ट मेंबर करके वहाँ पे काम करेंगे। और रिकॉग्नाइज रिसर्च सुपरवाइजर ऑफ द PhD स्कॉलर, जो भी आपका PhD स्कॉलर यानी सुपरवाइजर अलॉटमेंट कमेटी ने सुपरवाइजर जो अलॉटमेंट किया हुआ है वो वहाँ पे मीटिंग में रहेगा या कमेटी में रहेगा। एंड हेड ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कॉमर्स के है तो हेड ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट वहाँ पे कमेटी मेंबर करके रहेंगे। तो ये RAC कमेटी की वहाँ पे दी हुई है। वर्किंग ऑफ RAC क्या है ये देख लेते पहले। द अलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको रिसर्च सुपरवाइजर अलॉट करने का काम करेंगे। टू रिव्यू द रिसर्च प्रपोजल एंड फाइनलाइज द टॉपिक ऑफ द रिसर्च। जब भी आपको राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेनी है या वहाँ पे एप्लीकेशन करनी है, उसके पहले आपको आपका सिनॉप्सिस रेडी करके जो प्लेस ऑफ रिसर्च है आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है वहां जाके आपको आपका जो सिनॉप्सिस है वो दिखाना पड़ता है और उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो ये जो RAC कमेटी रहती है वो वहाँ पे रिव्यू करेगी आपकी रिसर्च प्रपोजल पे, उसका आपका टॉपिक जो है वो फाइनलाइज करेगी। अगर आपको कुछ सजेशंस देना है, अगर उनको बताना है कि नहीं यहाँ पे आप सैम्पलिंग ऐसे करना है, हाइपोथेसिस ऐसे लेना है, या आपके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो गए, टाइटल में कुछ गलत लग रहा है, या आपका टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत छोटा हो गया, टॉपिक का एरिया बहुत ज्यादा हो रहा है वगैरह, जो भी उनको लगते हैं प्रॉब्लम्स आपके रिसर्च में, वो वहाँ पे थोड़े से कम करने की कोशिश करेंगे। आपको एक अच्छे से वहां पे एडवाइस देंगे और उसका रिव्यू करके वो रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज करेंगे। periodically review and assist the progress of research work of the research scholar. Every research scholars को every 6 months जो है प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं RAC के सामने, कि जो भी एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर 6 महीने के बाद आपको वहाँ RAC के सामने आपका जो रिसर्च वर्क है वो दिखाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। The research scholar shall appear before the RAC once in every 6 months to make presentation of the progress of his or her work or guidance. If there is any change in title, हमने अभी तक सुना होगा कि टाइटल में चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और यूनिवर्सिटी ने हमको रजिस्ट्रेशन लेटर दे दिया तो हमको अगर टाइटल गलत भी है तो भी वही अब हमको डालना पड़ेगा। तो नहीं, अभी ये 2021 का जो डायरेक्शन है उसमें उन्होंने यहाँ पे एक डाल दिया है कि अगर आपको चेंज करना है टाइटल में, अगर काम करते समय, रिसर्च करते समय आपको ऐसे लगता है कि टाइटल में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है तो आप आपका टाइटल चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज आपको जो भी चेंज करना है वो भी आपको RAC के सामने देना है। RAC एंडोर्स करेंगे RRC को, और ये भी करना है आपको विदिन 2 years ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके 2 साल के अंदर आपको आपका टाइटल अगर चेंज करना है तो RAC के सामने फिर से आपको पूरा प्रपोजल रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ रिलोकेशन ऑफ वुमेन स्कॉलर ड्यू टू मैरिज, NOC is issued by supervisor. Supervisor से NOC लेनी पड़ेगी and head of PHLR, place for higher learning and research. Such proposal needs to be forwarded by the RAC to RRC. यानी RRC के थ्रू ही पूरे जो प्रपोजल्स है, अगर वुमेन कैंडिडेट है, पहले उन्होंने नागपुर में उनका लोकेशन था, फिर उनका वो लोकेशन बदल गया, कहीं और बॉम्बे पुणे चले गए, तो आपका रीलोकेशन के लिए NOC जो है वो सुपरवाइजर से और हेड ऑफ द रिसर्च सेंटर से आपको लेना पड़ेगा, RAC के सामने रखना पड़ेगा, उनके साइन लेके आपको RRC के सामने रखना पड़ेगा। RRC वहां पे आपका जो लोकेशन है वो बदल के देंगे। If the allotted supervisor is not able to guide the research scholar either due to death or disability, बहुत बार ऐसे होता है, कैसे कई हादसे होते हैं। अब हमने कोरोना में भी देखा, वो 2-3 केसेस हमारे पास ऐसे आए थे कि कोरोना में उनके जो गाइड, रिसर्च गाइड थे वो नहीं रहे, तो उनके अंडर जो रिसर्च स्कॉलर है उनको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोसीजर अभी यहाँ पे दी हुई है। द स्कॉलर में अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ सुपरवाइजर
RAC of the center with suggested new supervisor, forward it to the director of board of examinations and evaluations. Director may place the matter before RRC. RRC के सामने आएगा। जो भी चेंज करना है आपको सुपरवाइजर में, तो वो जो चेंज नेम है वो भी आपको देना पड़ेगा कि इनकी जगह पे मुझे ये सुपरवाइजर चाहिए। तो चेंज ऑफ सुपरवाइजर वो भी आपको अगर करना है तो वो RAC के थ्रू ही आपको RRC तक जाना पड़ेगा। सो प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर PhD प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि पहले जो हमको सिनॉप्सिस सबमिट करके RRC के सामने जाना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होना चाहिए। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर एंड एलिजिबल शैल अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द यूनिवर्सिटी। द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 8 हार्ड कॉपीज ऑफ द सिनॉप्सिस ड्यूली साइंड बाय द अलॉटेड सुपरवाइजर along with the allotment letter by the center, fees and other supporting documents shall be submitted to the university. अब देखिए यहाँ पे हमको जो सुपरवाइजर अलॉटमेंट हो गया है उसके बाद हमने RAC की, RAC के सामने हमने हमारा सिनॉप्सिस वहाँ पे रखा, RAC ने हमारा जो सिनॉप्सिस है वो फाइनलाइज करके दिया। उसके बाद ऑनलाइन साइट जो यूनिवर्सिटी की है एप्लीकेशन की वो खुलती है, वहाँ पे हमको हमारा पहला अपलोड करना पड़ेगा जो भी हमारा जो PhD प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। उसके साथ में हमें 8 कॉपीज में हमारा जो सिनॉप्सिस फाइनलाइज हुआ है उसके ऊपर सुपरवाइजर की साइन लेके हमको वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने अभी बताया, UG मार्कशीट एंड UG डिग्री की ट्रू कॉपी आपको लेनी है, PG मार्कशीट एंड PG डिग्री की ट्रू कॉपी आपको देनी है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इफ PG डिग्री इज अदर देन द RTMNU। अगर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बाहर आपने PG डिग्री ली है तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी से मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं वो कहीं बाहर से MBA करके आते हैं। जो हमारा मैनेजमेंट का भी हमारा रिसर्च सेंटर है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में क्या करना, MBA चलो बाहर जाके करते हैं, तो कहीं पुणे में जाते हैं, कहीं बॉम्बे में जाते हैं, कहीं और जाके MBA करके आते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं अभी PhD करना चाहिए, फिर 4-5 यूनिवर्सिटी घूम के आते हैं, फिर उनको लगता है कि बाप रे इतना वहाँ पे सब ये जो झमेला है। क्योंकि ये जो फॉर्मेट में बता रही हूँ या ये जो पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ वो सिर्फ RTMNU में नहीं है या नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा पूरा प्रोसीजर किया हुआ है। तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे फैमिलियर होना जरूरी है। लेकिन ये जब नहीं होता तो फिर से नागपुर यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन उनकी PG डिग्री अदर देन RTMNU में होती है, इसलिए उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी होता है जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करते हैं। देन रेसिडेंस सर्टिफिकेट सभी को अभी देना है कि आप नागपुर शहर या नागपुर डिस्ट्रिक्ट के आप रहवासी हो, उसका एक एफिडेविट आपको बनाना है और वो आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ देना है। सिनॉप्सिस अभी मैंने बताया 8 कॉपीज में आपको देना है। उसके पहले आपको जैसे आपने सेंटर की फीस जो भी है वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है वो तो भरनी ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके आपको यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी भरनी है। उसकी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स आपको इसके साथ देनी है, जो भी आपको मिलते हैं। यानी आप जब वहाँ पे फीस जमा करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको 2 कॉपीज वहाँ पे मिलती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, एक आपकी कॉपी ओरिजिनल कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। तो जहाँ जिस कॉपी पे यूनिवर्सिटी कॉपी ऐसे लिखा हुआ रहेगा वो कॉपी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट करके आपको ये फॉर्म के साथ देनी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चार्ट कर सकते हो, मुझे चार्ट दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन अप्रूवल और रिन्यूअल कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ रिसर्च इशूड बाय RTMNU। देखिए हर 5 साल के बाद जो भी रिसर्च सेंटर है उनका वहाँ पे अप्रूवल होता है, रिन्यूअल होता है। तो ये जो रिन्यूअल हुआ है या नहीं हुआ है उसकी कॉपी आपको इसके साथ देनी है। जो आपका रिसर्च सेंटर वैलिड है या नहीं है ये बताने के लिए आपको वो अप्रूवल लेटर आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। जो भी रिसर्च प्लेस आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसका अप्रूवल लेटर याद से ले लेना।
कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ आरएसी, जो आरएसी होगी वहाँ पे जो मिनट्स होंगे उसकी कॉपी आपको प्लेस ऑफ रिसर्च से मिलेंगी, वो वहाँ पे आपको सबमिट करनी है। कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एसएसी, एसएसी यानी सुपरवाइजर अलॉटमेंट कमेटी, उसका भी आपको मिनट्स मिलेंगे, वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। पीजी टीचर अप्रूवल लेटर ऑफ सुपरवाइजर, आपके सुपरवाइजर है पीजी अप्रूवल है कि नहीं, उसकी भी एक आपको यूनिवर्सिटी का लेटर दिया हुआ रहता है हर सुपरवाइजर को, उसकी कॉपी आपको लगानी है। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में पहले शुरू में जो टीचर्स थे, यूजी टीचर भी थे, तो उनको वहाँ पे ये मिलता था, यानी अप्रूवल मिलता था। लेकिन अभी ये ऐसे हो गया है कि बहुत सारे जहाँ पे पीजी नहीं है, देखिए जो सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है और वहाँ पे जो कॉलेज में आपको करना है वहाँ पे अगर पीजी नहीं है तो वहाँ के प्लेस ऑफ रिसर्च को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पीजी अप्रूवल पीजी अप्रूवल लेटर ये बहुत जरूरी है सुपरवाइजर का। तो ये एक बार आपने जो भी सुपरवाइजर आप सिलेक्ट करेंगे उनका पीजी अप्रूवल लेटर है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। देन पीएचडी सुपरवाइजर रिकॉग्निशन लेटर की ट्रू कॉपी जो आपको आपके गाइडेंस से मिलेंगी। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ से लेके, अप्रूवल लेटर, कॉपी ऑफ रिपोर्ट आरएसी, कॉपी ऑफ रिपोर्ट एसएसी, पीजी अप्रूवल लेटर एंड पीजी सुपरवाइजर रिकॉग्निशन लेटर, ये जो है ये सभी आपको प्लेस ऑफ रिसर्च से आपको लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मुझे चार्ट चाहिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव करते हैं। ठीक है, देन सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सबके समझ में आ गया होंगे, तो आगे चलते हैं। मैम यस, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहाँ बनती है मैम? एक रहिवासी दाखला बोलते हैं, वो सेम है क्या रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट में? वही है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, म्हणजे तुम्ही नागपूर शहराचे रहिवासी आहात, ते तलाठी वगैरे कडनं बनते ते म्हणत आहेत का? ॲफिडेव्हिट तुम्हाला कोर्टात जाऊन बनवावं लागेल, जिल्हा कोर्टात जाऊन। बरं बरं, ठीक आहे मॅम। ठीक आहे, आपण क्वेश्चन आन्सर्स पूर्ण हे झाल्यानंतर घेऊ, चालेल का? Okay, Yes, ma'am. After session, we have question and answer session. We will follow the. ठीक है, Thank you. आरआरसी देखते हैं। आरआरसी क्या है? आरआरसी ये यूनिवर्सिटी लेवल में होती है। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर वहाँ पे ये कमेटी एक फॉर्म करते हैं। तो एवरी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज प्लेस्ड फॉर कंसिडरेशन बिफोर आरआरसी रिसर्च रिकग्निशन कमेटी। ये थोड़ा इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना, क्योंकि आरएससी और आरआरसी में कंफ्यूजन होता है बहुत बार। तो रिसर्च रिकग्निशन कमेटी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का, हर एक सब्जेक्ट की आरआरसी अलग अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द सेक्शन 37(2)(a) ऑफ द एक्ट, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट से, वहाँ उसके एक्ट के मुताबिक ये आरआरसी की जो कमेटी वो बनती है। बीसी और प्रोवीसी वहाँ पे ये कमेटी बनाते हैं। द आरआरसी शैल टेक डिसीजन आइदर द एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिसर्च टॉपिक और टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटेड सिनॉप्सिस एंड ऑल्सो द पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन मेड बाय द कैंडिडेट। आपको वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर कहेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। अगर उनको लगता है कि नहीं आपका टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसर्न सुपरवाइजर को भी कभी कभी बुलाते हैं। हर बार बुलाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बुला सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द आरआरसी शैल बी फाइनल, और जो भी वहाँ पे डिसीजन होगा पूरा आपका प्रेजेंटेशन होने के बाद, तो वो अगर रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ये आपका फाइनल वहाँ पे आरआरसी का फाइनल डिसीजन होगा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन बाय द आरआरसी, द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज द रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर। यानी जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा आरआरसी का, हाँ ठीक है आपका सब्जेक्ट ठीक है और आप पीएचडी कर सकते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेटर मिलेगा बाकायदा। नॉर्मली 1 महीने के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेटर आपके मेल पे आ जाता है या वेबसाइट पे आ जाता है, तो वो आपको वहां से लेना है और आपके पास पूरा सिक्योर करके रखना है, स्टोर करके रखना है, क्योंकि पूरे जो टेन्योर आपका रहेगा पीएचडी का, तब हर एक टाइम पे आपका ये पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर आपका पासपोर्ट करके वहां पे काम करेगा। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तुरंत वेबसाइट से अपने रजिस्ट्रेशन लेटर की कॉपी जो है वो डाउनलोड करके अपने पास प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है,
ओके, टेन्योर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं अब पहले शुरू में ही मैंने बताया कि पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम फॉर 6 years। मैक्सिमम आप 6 year, अभी देखिए पहले जो प्रोविजन था 2012 के 11 के और 12 के डायरेक्शन में कि आप अगर आपका 5 साल में नहीं, 5 साल का टेन्योर था और 5 साल में अगर आप नहीं कर पाते तो आपको री रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने टेन्योर बढ़ा दी है 6 years, लेकिन आप इसके बाद में री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सभी ने समझ लेनी है कि 6 years के बाद किसी भी सेंटर से आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वही टॉपिक लेके आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% उसकी डिसेबिलिटी है, तो मे बी अलाउडेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years, यानी उनको 2 साल का वुमेन कैंडिडेट को और डिसेबल्ड पर्सन को 2 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है। यानी 6 years का टेन्योर है, अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए तो वो और 2 साल यानी 8 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी और वुमेन कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रिविलेज मिला है कि वुमेन कैंडिडेट मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन अप टू 240 days, 240 डेज का, यानी आपको वहां पे ये मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप पैटर्निटी एंड चाइल्ड केयर ले रहे हैं, आपका पूरा वहां पे टेन्योर जो है बढ़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे 2 साल और 2 साल ज्यादा, ये न लेते हुए आपने ये यहाँ पे थोड़ा सा ये करना चाहिए कि मुझे 3 साल में कंप्लीट करनी है पीएचडी और मैक्सिमम 6 years में अगर आप वहाँ पे सबमिट कर देते हो तो ही वो पीएचडी का जो है वो आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि पीएचडी का जो टॉपिक आप लेते हो वो करंट टॉपिक होता है, और अगर 8 साल 10 साल 12 साल आप लगाते हो किसी भी रिसर्च वर्क के लिए, साइंस में चल जाता है, कॉमर्स में 10 साल में पूरा सिनारियो बदल जाता है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट के अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो 3 years का जो मिनिमम पीरियड दिया हुआ है उसके बाद तुरंत आप वहां पे सबमिट कर देंगे। सो अ कैंडिडेट रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अलाउड टू सबमिट थीसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 3 years। मिनिमम 3 years कंप्लीट होने के बाद आप आपका थीसिस सबमिट कर सकते हो। अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है देखते हैं कि एवरी रजिस्टर, एक बार आप रजिस्टर हो गए तो एवरी रजिस्टर कैंडिडेट शैल सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क आफ्टर एवरी 6 months इन द डिस्क्राइब फॉर्म। एनेक्सर 2 करके दिया हुआ है, अपने डायरेक्शन नंबर 11 में दिया है, 6 में भी दिया है, डायरेक्शन नंबर 6 में भी दिया हुआ है। तो उसके पीछे जो अनेक्सर्स लगे हुए, एसओपीस लगे हुए, वो आपको देखने हैं एक बार, या रिसर्च सेंटर पे जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे, जो हेड होंगे, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये जो अनेक्स्चर है वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये जो आप प्रोवाइड वो वहां से अगर प्रोवाइड होता है तो आपके पास उसकी पूरी कॉपी बना के रखिए। सॉरी। तो रिसर्च वर्क आपने जो भी किया हुआ है उसका एवरी 6 months आरएसी के सामने वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे बना के प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको तैयार करना है, और एवरी 6 months आपको यूनिवर्सिटी में जाके ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपी जो है वो वहाँ पे सबमिट करनी है पीएचडी सेक्शन में। और एवरी 6 months जो रिटेंशन फी है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी की एक रिटेंशन फीस होती है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दी हुई है, तो वो भी आपको रिटेंशन फीस भरनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि जो भी रिटेंशन फीस आप भरते हो उसकी जो कॉपी, जैसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस भरी है तो उसकी भी आपको एक कैंडिडेट ओरिजिनल कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी, ऐसे 2 कॉपीज मिलती है। तो उसमें से यूनिवर्सिटी कॉपी आपको यूनिवर्सिटी सबमिट करनी, ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी। तो ऐसे इसका भी आपको जो रिटेंशन फीस आप भरते हो उसकी भी आपको 2 कॉपीज मिलेंगी, यूनिवर्सिटी कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। तो यूनिवर्सिटी कॉपी जो है वो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो यूनिवर्सिटी कॉपी यस, एनी क्वेश्चन अग्रवाल मैडम? नहीं करते हैं, नहीं। हेलो, Participants, please keep your mic on mute condition.
हाँ, तो यूनिवर्सिटी कॉपी जो है वो जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा उसके साथ सबमिट नहीं करना है, वो आप ही के पास संभाल के रखिए। अच्छा वो किसी मैडम को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तब सभी रिटेंशन फीस की जो कॉपीज है यूनिवर्सिटी कॉपी वो वहां पे देंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ नहीं देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी में जाने वाले और प्रोग्रेस रिपोर्ट देने वाले, तो कभी कभी वो आपके यूनिवर्सिटी कॉपी जो है वो वहाँ पे कहीं जा सकती है या कहीं मिस हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है, तो इसलिए आपके पास ही संभाल कर रखना। और जब फाइनल आपका सबमिशन होगा तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉपी है सभी जो एवरी 6 मंथ्स आप भरेंगे पैसे, उसकी जो कॉपी है वो वहाँ पे लगाना है। Researcher shall appear before RAC once in every 6 months to make presentation of progress of research work. 6 monthly progress report shall then be submitted by the candidate through head place for higher learning and research. यानी आपकी रिसर्च वर्क का जो हेड होगा उसके थ्रू ही आपको देना है, लेकिन कैंडिडेट को जो वहाँ पे जाके देना है प्रोग्रेस रिपोर्ट, साइन उसके ऊपर आपके सुपरवाइजर की और प्रोग्रेस आपके हेड की रहेंगी, प्लेस ऑफ रिसर्च के हेड की रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को प्रोग्रेस रिपोर्ट तक? सिक्स मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट तक समझ में आ गया सभी को? Yes, madam. There are responses in the chat box. ओके, और ये हैंग हो गया शायद। यस, कैंसलेशन देखते हैं रजिस्ट्रेशन का। कैंसलेशन 3 टाइप का होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं मैं रिसर्च नहीं कर सकता, या कहीं किसी और वजह से आपका मूड वहां पे चला गया, या कहीं आपकी ट्रांसफर हो गई, आप अब्रॉड चले गए, कुछ भी हो गया, तो आप वॉलेंटरी वहां पे कैंसलेशन कर सकते। उसकी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे नहीं दी, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसने कैंसिल नहीं करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। मिसकंडक्ट अगर आपका रहा और आपके प्लेस ऑफ रिसर्च के हेड ने अगर वहाँ पे कंप्लेंट कर दी तो भी आपका कैंसिलेशन हो सकता है। और आपका अगर अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस रिसर्च वर्क रहा और सुपरवाइजर ने कंप्लेंट कर दी तो भी आप फेल हो सकते हो और आपको क्या वहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन। अब कोर्स वर्क भी आपको करना है, इसके अलग से एसओपीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया नहीं है। बट ऑल कैंडिडेट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड कोर्स वर्क विद इन 1 ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ पे ध्यान में रखिए कि रजिस्ट्रेशन जब भी आपका हो जाएगा उसके विद इन 1 ईयर, 1 साल के तुरंत अंदर आपको ये कोर्स वर्क करना है जो भी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। अब एसओपीज बदल गए हैं, वहाँ पे 2 टाइप के एसओपीज कर दिए गए हैं, कि जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो अलग कर दिया गया है और कंसर्न सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो अलग कर दिया गया है। उसके एसओपीज जो है उसका अलग से हम कभी टाइम मिले तो दीदी मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर से एक बार ओनली फॉर द कोर्स वर्क हम लोग ऐसे छोटा सा एक वर्कशॉप लेंगे कि कोर्स वर्क में कौन से टॉपिक है, क्योंकि पिछला जो कोर्स वर्क था वो उसके जो फॉर्मेट था वो पूरा उसमें कमेटी में मैं थी, उसके हेड थी मैं, और मैंने ही पहला जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क था यूनिवर्सिटी का हमारे कॉलेज में मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था और उसकी ऑनलाइन एग्जाम भी मैंने ही ऑर्गेनाइज की थी, तो इसलिए मुझे पता है कि ये कोर्स वर्क क्या है और कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी पूरा बदल गया है, इस कमेटी में भी मैंने काम किया है, जो भी यहाँ पे चेंजेस किए हुए वो थोड़े से वहाँ पे अभी फाइनलाइज होने के हैं, इसलिए मैंने अभी यहाँ दिए नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर आपको आपका कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। अब देखिए प्लेगरिज्म का भी बहुत ज्यादा मुद्दा यहाँ पे उठता है, क्योंकि यूजीसी ने सभी कैंडिडेट को यह मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको पीएचडी आपका यूजीसी के रूल्स के मुताबिक चाहिए, या अभी नेट सेट के लिए भी एग्जम्पशन दे दिया है पीएचडी में अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको प्लेगरिज्म का जो सर्टिफिकेट है वो देना जरूरी है। तो इसलिए बिफोर सबमिशन ऑफ द थीसिस टू द यूनिवर्सिटी, all PhD scholars shall submit the soft copy of their thesis to the coordinator, University Campus Library, RT Venue for detecting plagiarism.
अब देखिए हमारा जो नागपुर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, कैंपस लाइब्रेरी, वहां पे अभी वीना प्रकाश है, डॉक्टर वीना प्रकाश मैडम वहां पे कोऑर्डिनेटर है, उनके थ्रू आपको करना है। जो भी वहां पे कोऑर्डिनेटर होगा उसके बाद उनके बाद में, तो उनके थ्रू ही आपको ये उसका प्लेगरिज्म के लिए चेकअप के लिए डालना है सॉफ्ट कॉपी। They shall issue the certificate of non-plagiarism through Urkund or equivalent system of UGC to the candidate. उर्कुंड हमारे यहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्कुंड लिया गया है, जो प्लेगरिज्म चेक करता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो उन्होंने लिया हुआ है। उसका जो नॉन प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट है वो ये कोऑर्डिनेटर से आपको मिलेगा। अब मोर देन 10% अगर आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट हो गया है तो आपको फिर से जो है रीसबमिट करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा प्लेगरिज्म, और वो आपको फिर से प्लेगरिज्म डिटेक्शन टेस्ट के लिए कोऑर्डिनेटर के यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। The candidate shall submit the thesis to the university only after receiving non-plagiarism report. ये अगर आपको रिपोर्ट मिलता है तो ही आप यूनिवर्सिटी को आपका थीसिस सबमिट कर सकते हो। Candidate should apply for non-plagiarism certificate at least 3 months before the submission. सबमिशन करने के 3 महीने पहले आपको ये यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना है नॉन प्लेगरिज्म का, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। अगर सबमिशन डेट आ गई और आपको प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन 30 डेज के अंदर आपको ये नॉन प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ओके, देन सबमिशन ऑफ थीसिस पे आ गए हम लोग। अभी अपना जो थीसिस का पूरा काम हो गया, 10 ईयर कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गए, तो हम लोग अगर हमको सबमिट करना है थीसिस तो उसकी प्रोसीजर क्या है ये यहाँ पे देखते हैं। थीसिस सबमिशन शैल बी अलॉटेड ओनली 36 months आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी 3 years. The candidate may submit summary of the thesis 33 months आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपके 3 साल होने को 3 महीने बाकी अगर है और आपको लगता है कि आरआरसी होने वाली है और आरआरसी उसके बाद में 6 महीने नहीं होगी तो मेरा काम वहाँ पे थोड़ा सा लेट होगा, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका काम कंप्लीट हो गया है तो 36 मंथ्स तक रुकने की जरूरत नहीं, 3 महीने पहले ही आप अपना समरी जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 months बिफोर ईच कैंडिडेट शैल गिव अ प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन बिफोर आरएससी। अगर आपको लगता है कि आपका काम कंप्लीट हो गया है और आपको ये थीसिस सबमिट करना है तो जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट का आरएससी होता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन होता है, वैसे पूरे थीसिस का आपको प्रेजेंटेशन करना है, उसको बोलते हैं प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन फॉर द पीएचडी। तो ये आरएससी के सामने फिर से करना पड़ेगा, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगेंगे। Every candidate shall submit the proof of completion of the coursework. जैसे मैंने अभी बताया कि कोर्स वर्क 1 साल के अंदर करना जरूरी है, तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट थ्रू हेड ऑफ प्लेस ऑफ रिसर्च आपको देना है। द प्री सबमिशन सेमिनार, जैसे मैंने अभी बताया कि आरएससी के सामने पूरे थीसिस का आपको एक वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन ऑफ मिनिमम 2 रिसर्च पेपर्स, वन ऑफ देम शुड बी इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल एज फर्स्ट ऑथर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अंडरलाइन करना चाहूंगी कि बहुत से जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी ऐसे होती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग 2nd नंबर पे रखते हैं और 1st नंबर पे हमारा नाम रख के हम लोग हमारा उन्हीं का जो मैटर रहता है, उन्हीं का जो रिसर्च रहता है वो पब्लिकेशन के लिए जर्नल्स में दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ये करने के लिए, बर्न करने के लिए, क्योंकि मेहनत तो पूरी जो है वो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की रहती है, तो इसलिए रिसर्च स्कॉलर्स को एक तो मिनिमम 1 रिसर्च पेपर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या यूजीसी केयर में फर्स्ट ऑथर करके डालना है। ठीक है, 2 पेपर प्रेजेंटेशंस करने हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस एज फर्स्ट ऑथर। ठीक है, देन समरी ऑफ द थीसिस वहां पे देनी है। यहाँ पे मैं बताऊंगी जिनका मराठी मीडियम है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में मराठी मीडियम है, उनको इंग्लिश का भी समरी वहाँ पे देनी है, यानी आपके पूरे समरी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करके आपको, यानी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस में अदर देन मराठी, तो आपको मराठी मीडियम का जो अगर आपका थीसिस है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समरी, ओनली समरी आपको सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द मराठी समरी। समझ में आ गया होगा सभी के?
तो ये जो समरी हमको सबमिट करनी है मराठी मीडियम के लोगों को, हिंदी मीडियम के भी लोगों को, इंग्लिश में भी वहां पे हमको देना है। सो एंड नॉन प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट जैसे मैंने अभी बताया, जो हमें कहाँ से मिलेगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर से हमको मिलेगा, वो वहां पे देना है। Then after suitably incorporating the feedback and comments suggested during the pre-submission presentation in the draft of the thesis, candidate shall submit the thesis to university. बहुत बार ऐसे होता है कि आरएससी हमको सजेस्ट करते हैं कि कुछ रिलायबिलिटी टेस्ट लगाइए, वैलिडिटी टेस्ट लगाइए, जो भी डेटा आप प्रेजेंट करते हो बहुत बार स्क्यूड लगता है तो स्क्यूनेस लगाइए, इससे कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स बताते हैं, या कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके फुलफिल नहीं हुए, हाइपोथेसिस आपके कुछ गलत हो गए वगैरह, जो भी आपको वहां पे फीडबैक मिलेगा वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ रिसर्च से आपको लेना पड़ेगा हेड से, और तभी जाके आपको फाइनल थीसिस जो है वो सबमिशन करने के लिए परमिशन मिल सकती है। द फाइनल थीसिस शैल बी प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अभी क्या क्या देना है, जैसे सिनॉप्सिस हमको 8 कॉपीज में देना था, लेकिन हमें अपनी जो थीसिस है वो 5 कॉपीज में देनी है। ठीक है, 5 कॉपीज ऑफ द थीसिस इन कॉम्पैक्ट बाउंड फॉर्म, एंड उसका पूरा अच्छे से बाइंडिंग किया हुआ विद द सॉफ्ट कॉपी। सीडी या पेन ड्राइव में आपको सॉफ्ट कॉपी देनी है, उसको एक बाइंड करके अच्छे से पूरा वो कॉपी 5 कॉपीज में आपको देने हैं। देन पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग शैल बी A4 साइज। बहुत बार बॉन्ड पेपर लेते हैं लोग, आप कोई भी पेपर ले सकते हो, लेकिन वो A4 साइज का होना चाहिए। प्रिंटिंग शैल बी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, यानी पेपर के दोनों साइड से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। पहले तो एक ही साइड से कर सकते थे, लेकिन अभी दोनों साइड से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 रहेंगे। पेजेस रिस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं अभी 500 तक, यानी अगर आप बोथ साइड से आप प्रिंटिंग करते हैं तो 250 पेजेस का आपका थीसिस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो हैंडी होना चाहिए, बाहर भी हमें भेजना पड़ता है, तो बहुत बार इसलिए वो 500 पेजेस तक रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए हैं। सभी सुपरवाइजर ने भी ये ध्यान में रखना है। बहुत बार सुपरवाइजर लोगों को भी लगता है कि बहुत ज्यादा अगर पेजेस है तो बच्चे ने अच्छे से काम किया, रिसर्च स्कॉलर ने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा नहीं होता। उनका मैटर क्या है अंदर का वो देखना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं से भी उठा के भी मैटर बहुत ज्यादा कर देते हैं लोग, तो ये नहीं होने के लिए इसलिए 500 पेजेस का रिस्ट्रिक्शंस कर दिया गया है, और 250 पेजेस यानी बोथ साइड अगर प्रिंटिंग करते हैं तो। मार्जिन है मिनिमम 1.5 ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको मार्जिन देनी है। दोनों साइड मार्जिन देते हैं तो बहुत सारे पेजेस बढ़ जाते हैं फिर, इसलिए एक साइड में ही आपको मार्जिन देनी है, 1.5 minimum margin. The title of the thesis, college or university name, name of concerned subject, name of concerned faculty, name of candidate, name of supervisor, co-supervisor if any, month, year shall be printed on the title page and the front cover of the thesis. ये annexure 6 में पूरा दिया हुआ है कि font size क्या रहेगा, नेम क्या कैसे लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, पूरा दिया हुआ है, आप देख लेना या फिर हेड ऑफ द रिसर्च से वहां पे ले लेना। द थीसिस शैल बी इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर एंड डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट। एक सुपरवाइजर से डिक्लेरेशन देना होता है कि इन्होंने ये जो काम किया है वो खुद ने किया है, फर्स्ट हैंड किया है हुआ है, कहीं से भी लिया हुआ नहीं है, और डिक्लेरेशन भी ये दिया हुआ है कि मैंने कहीं अदर यूनिवर्सिटीज में दिया हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक बात बताना भूल गई कि एक बार आपका नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप नागपुर यूनिवर्सिटी के और कहीं के भी दूसरी कौन सी भी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना पीएचडी के लिए ना किसी और डिग्री के लिए। तो ये इसलिए उसका डिक्लेरेशन भी हमको देना पड़ता है कि विद इन द पीरियड ऑफ दिस 3 years और 6 years तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री नहीं ली है, या आपका रिसर्च आपने कहीं पे भी दूसरी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिग्री के लिए प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। इसका एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट है जो दिया हुआ है अनेक्शर में, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब हमारा एक बार थीसिस वहां पे सबमिट हो जाता है तो अपॉइंटमेंट होते हैं रेफरीज की, जो वैल्यूअर्स रहते हैं हमारे पीएचडी के उनकी। तो विद इन 3 months ऑफ द समरी और थीसिस, जब भी हमारा थीसिस सबमिट होता है उसके 3 महीने के पहले ही उसके अंदर ही आरआरसी रिकमेंड करती है पैनल को, जो वहां जहाँ पे 6 रेफरीज होती है उनका रैंकिंग होता है एसोसिएट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो ये जो 6 रेफरीज होते हैं तो उनके 2 पैनल बनाते हैं। एक पैनल रहता है विद इन महाराष्ट्र का 3 रेफरीज का, और एक पैनल रहता है आउटसाइड महाराष्ट्र का 3 रेफरीज का।
पहले तो आरआरसी रिकमेंड करती है कि 2 रेफरीज ही स्टेट से होने चाहिए और 1 रेफरी आउटसाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में रेफरीज अवेलेबल नहीं है विद इन द स्टेट, पैनल शैल रिकमेंडेड ऑल द 3 रेफरीज आउटसाइड द स्टेट। बाहर से भी वो लोग पूरे 3 ले सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट को वहां पे रेफरी नहीं मिल रहे हैं तो। द पैनल रिकमेंडेड बाय आरआरसी शैल बी प्लेस्ड बिफोर वाइस चांसलर फॉर हिज अप्रूवल। ये पैनल होने के बाद वीसी के सामने जाते हैं, वो वहां पे अप्रूवल उसका देते हैं। द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय द रिसर्चर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय 3 एग्जामिनर्स। अभी जो 6 के पैनल दिया गया है उसी में से 3 को सिलेक्ट किया जाता है, वहां से 1 विद इन द स्टेट एंड 2 फ्रॉम द आउट ऑफ महाराष्ट्र। ऐसी सिलेक्शन होता है। 48-2 की जो कमिटी है वो वहां पे टिक मार्क करती है और उनको भेजने के लिए कहती है पीएचडी सेल को। Within a week after appointment of referees, university initiate the process of evaluation by sending the letters to referees with the copies of summary and ask them to send their consent within the 15 days. यानी उनको पूछते हैं कि 15 दिन के अंदर आप ये देख लीजिए समरी, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो तो उसे कंसेंट आप हमें भेज दीजिए। अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी 2011 के इस डायरेक्शन में एकदम वहाँ पे पूरा परफेक्टली दिया गया है कि ये कंसेंट आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं। अभी तक नहीं था लेकिन अब है, इसलिए ये ईमेल पे बहुत जल्दी काम हो जाता है। If such consent is not issued within the 30 days, university shall send letter to consent for consent to the next referee from the panel। 6 का जो पैनल दिया गया है उसी में से अगर किसी ने कंसेंट नहीं भेजा तो नेक्स्ट रेफरी को वहां पे लेटर भेजा जाता है। If consent is not issued in 30 days, reminder shall send to the referees। उनको एक रिमाइंडर दिया जाता है कि अगर आपने अभी तक नहीं भेजा तो अभी भेज दीजिए। ऐसे करते करते सभी रेफरीज को वहां पे रिमाइंडर या लेटर्स कंसेंट के लिए लेटर भेज दिए जाते हैं। इन केस द कंप्लीट पैनल एग्जॉस्टेड, द फ्रेश पैनल शैल बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द आरआरसी। और वो सब्जेक्ट के लिए फिर से हमें आप पैनल दीजिए करके फिर से 6 महीने के बाद वो आरआरसी के सामने आता है। तो पूरी ये 6 महीने की प्रोसीजर है। अगर तब तक आपका अगर लक अच्छा है और रेफरीज ने हाँ कह दिया तो अगली प्रोसीजर वहां पे होती है कि वेयर द रेफरीज हैज एक्सेप्टेड द एग्जामिन the thesis, the office of PhD cell shall forward the soft copy of the thesis to him through email। पहले तो सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं, देन हार्ड कॉपी थ्रू सरफेस मेल। फिर स्पीड पोस्ट से आता है आजकल, तो स्पीड पोस्ट से वो हमारा थीसिस भी वहां पे पहुंच जाता है विद इन 1 वीक एंड रिक्वेस्ट द रेफरी टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 45 डेज। नोट कर दीजिए 45 डेज में आपका रेफरी ने अगर एक्सेप्टेंस दिया, पहले तो 15 दिन उनको भेजते हैं कंसेंट के लिए, अगर रिमाइंडर देके फिर से उनको 30 डेज देते हैं तो 45 डेज वहां पे निकल गए। फिर अगर उन्होंने कंसेंट दिया है तो एग्जामिन के लिए उनको 45 डेज देते हैं, तो 90 डेज यानी यहाँ पे 3 मंथ्स ऐसे ही निकल गए। आप देखिए कैलकुलेशन करिए जब तक मैं बताती हूँ आपको। If referees fail to do so, यानी 45 डेज में अगर नहीं भेजता है तो पीएचडी से सेल शैल सेंड रिमाइंडर थ्रू ईमेल एंड फोन कॉल्स। फोन कॉल करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं एंड रिक्वेस्ट टू रेफरी टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 30 डेज। फिर से उनको 30 डेज देते हैं, तो 90 में 30 हो गए 120 डेज। उनको बोलते हैं कि अभी आपको आप जल्दी से भेज दीजिए, मेल पे भी अगर आपने रिपोर्ट भेजा तो भी चलेगा वगैरह वगैरह, फोन कॉल पे बता देते हैं। If concerned referees fail to comply with even within the extended period office of the PhD cell, cancel his or her appointment and invite the next referee from the approved list। बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है, 2 का आ जाता है पूरा रिपोर्ट और तीसरे का आता ही नहीं। बहुत बार ऐसे होता है और तीसरे के लिए ही हमको बहुत लोगों को पूछना पड़ता है, अरे तुम करोगे क्या। तो ये जो है ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वहां पे दिया गया है, द इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एटलीस्ट 2 रेफरीज। यानी 3 से नहीं मिल रहे, तीसरा बहुत तकरे करता है कभी कभी, तो तीसरे से नहीं मिल रहे तो 2 से मिल गए हैं। तो अभी ये डायरेक्शन में देखिए आप खुद कितने ज्यादा भाग्यवान लोग हो जो यहाँ से इस डायरेक्शन से रजिस्ट्रेशन करेंगे कि अगर 2 रेफरी का भी आ गया तो ये ओपन हो जाएगा प्रोविस चांसलर के सामने एंड फर्दर एक्शन के लिए भेज दिया जाएगा विद इन 1 वीक।
If both the referees recommended acceptance of the thesis, यानी वो जब खोलेंगे रिपोर्ट खोलेंगे और दोनों के दोनों अगर रिकमेंड करते हैं कि यस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं थीसिस को, तो फर्दर प्रोसेस यानी वाइवा वोक के लिए आपका पूरा जो है थीसिस का प्रोसेस चला जाएगा. If one or any of the two referees recommended modifications or rejections, process will be initiated after receive the report of third. फिर आपके थर्ड रेफरी के लिए हम लोग रुकेंगे. थर्ड रेफरी ने भी अगर नहीं बोला है तो फिर से आपको वहां पे पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी. सो वाइवा वहां पे लगेगा. द डेट, डे, टाइम, प्लेस of Viva work and open defense of the thesis shall be notified by the office of the PhD cell. PhD cell तय करते हैं कि कौन से दिन में, कौन से टाइम पे, कौन से डेट में और कहाँ पे ये आपका वाइवा होगा. और ये आपको इसका नोटिस मिल जाता है 8 दिन के पहले. नॉर्मली द वाइवा of the thesis and open defense of the thesis shall be arranged at the place of research approved by the university. अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे ही फाइनल वाइवा होते थे, लेकिन अभी इस डायरेक्शन के बाद में शायद, मैं शायद बोल रही हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वीसी सर ने अभी तक परमिशन नहीं दी हुई है, तो अगर शायद जहाँ प्लेस आपका रिसर्च प्लेस है वहीं पे आपका फाइनल वाइवा भी हो सकता है. तो वहाँ पे कौन कौन रहेगा? इंटरनल रेफरी करके आपके सुपरवाइजर रहेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर एक जो 2 का जो रिपोर्ट आया हुआ है 2 या 3 का, तो जो भी एक नॉर्मली अभी तक ऐसा था कि विच इज नियरर टू द नागपुर यूनिवर्सिटी, नियरेस्ट जो हमारा एग्जामिनर था उनको हम लोग बुलाते थे क्योंकि अभी तक ऑफलाइन वाइवा होता था. लेकिन अब पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन हो गई है, अभी तक ऑफलाइन पे हम लोग आए नहीं हैं, तो ऑनलाइन में एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई भी रह सकता है, बाहर का भी दूर का भी कोई भी रह सकता है. तो एक्सटर्नल एग्जामिनर, हेड, प्लेस ऑफ रिसर्च के जो हेड है वो रहेंगे, डीन रहेंगे या डीन के नॉमिनी रहेंगे, आरएससी मेंबर जो है, जो वीसी नॉमिनी है वो वहाँ पे रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स अगर आपके कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स इंटरेस्टेड है वो रहेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स को भी आप बुला सकते हैं और इंटरेस्टेड अदर पर्सन्स अगर है तो उनको भी आप वहाँ पे बुला सकते हैं. ये ओपन डिफेंस रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. तो एक बात मैं और यहाँ पे अंडरलाइन करूंगी कि सुपरवाइजर ये इंटरनल रेफरी होता है ना, वाइवा तक जो भी आपको सुपरवाइजर अलॉट होता है वो आपके साथ वाइवा तक रहता है. तो एक बार आपका जो हेड है रिसर्च सेंटर का उसके साथ मधुर संबंध नहीं बनाए तो भी चलेगा, लेकिन सुपरवाइजर के साथ बना के रखना, तो सुपरवाइजर आपको आखिरी तक लेके जाएगा. So, if the external referee is unable to present at the time of Viva, the Vice Chancellor, on the recommendation of supervisor, shall appoint a senior research supervisor to act an external referee. बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत कम यानी बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि रेफरी वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो ऐसे समय पे सुपरवाइजर ने अगर रिकमेंडेशन किया है तो वाइस चांसलर दूसरे किसी सीनियर रिसर्च सुपरवाइजर को यूनिवर्सिटी के ही एक्सटर्नल रेफरी करके अपॉइंटमेंट दे सकते हैं. द रेफरी प्रेजेंट फॉर वाइवा शैल सबमिट देयर फाइनल रिपोर्ट इन रिटन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय देम इमीडिएटली आफ्टर द वाइवा. जब आपका वाइवा होता है तभी इमीडिएटली आपको उनका रिपोर्ट यूनिवर्सिटी चला जाता है. द ऑफिस ऑफ द पीएचडी सेल शैल प्लेस द रिपोर्ट बिफोर प्रो वाइस चांसलर for the acceptance and release for the notification within 15 days. और आपका वाइवा होने के बाद 15 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए या निकलता है. बहुत बार निकलता है. नागपुर यूनिवर्सिटी का जो है वो जिस पूरे महीने का निकलता है कि एक महीने में जितने भी वाइवा होते हैं तो फर्स्ट जो वीक रहता है अगले मंथ का, तो वहाँ भी नोटिफिकेशन निकल जाता है और रेगुलरली निकलता है. तो ये पूरी प्रोसीजर है आपके रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए, और आफ्टर पीएचडी भी मैंने बता दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली. और मैंने मुझे ये बताने के लिए बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ इस्लाम कॉलेज का कि एक अच्छा मुझे मौका मिला और एक अच्छी एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बन गया, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ बताते थे प्रोसीजर क्या है, बताते थे सबको, लेकिन अब ऐसे हो गया है कि पूरा डायरेक्शन के मैंने पूरा 2011, 2012, 2017, 2018, 2021 पूरे सारे डायरेक्शंस का मैंने पूरा स्टडी कर दिया है. थोड़ा बहुत मालूम था लेकिन अभी डिटेल स्टडी कर दिया. तो थैंक यू तो दीनी मैडम, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैडम आप कर सकते हो, करिए.
अभी तो इतना ज्यादा बहुत सारा काम है इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी मुझे बताना था, जितना मैं बता सकती थी, पूरा बताने की कोशिश की है। और कई कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे किसी के तो आप पूछ सकते हो। हेलो मैम। एक एक Hello. करके। Hello. यस, Thank you, ma'am. All the details of the. आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? मनीषा। Yes. Yes. Thank you, ma'am, for giving us all the details involved in PhD procedures. Now the forum is open for questions. Participant, you can unmute yourself and ask question directly. मैम Yes. हेलो Yes. हाँ, Yes. बोलिए। मैम, अपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में जो बताया था, तो इन केस जो फीमेल स्टूडेंट्स है एंड दे हैव टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ मैरिज, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नागपुर का दे कैन सबमिट द एनओसी। नहीं, देखिए पहले तो आपको, अगर आप पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो उस समय में आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो नागपुर का ही देना है। अगर आप जब आप पीएचडी करने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तब आप नागपुर में है, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर आपका मैरिज के वजह से आप कहीं और चले गए हैं तो आरएसी के थ्रू जाएगा। अभी तक तो आरएसी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी आरएसी नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। नहीं है तो यू आर नॉट अलाउडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन इन दैट केस। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और किसी को पूछना है? Hello, ma'am. Can you hear me? Yes. Yes. My name is Dr. Shibin. I am from Hislop College. Yes. So I have done my PhD from Indian Institute of Technology, Kanpur. After that, I have 4.5 to 5 years of postdoctoral experience in US. Yes. So I have published around 17 international publications. What is the eligibility criteria for applying for thesis supervisor in RTM University? सर हाँ, सुपरवाइजर क्राइटेरिया के लिए भी उन्होंने बताया। आप पीजी टीचर हो? No, ma'am. Actually, I am not a PG teacher, but by UGC rule in 2016, UGC rule it is saying that you, with 2 publication, international publication, you are eligible to apply for the thesis supervisor. So I'm a little confused, so that's why I asked you this question. नहीं, एज पर द डायरेक्शन सुपरवाइजर जो है वो पीजी ग्रेजुएशन टीचिंग करने वाला होना चाहिए। Okay. Thank you, ma'am. Criteria. This is the first criteria. Okay, PG teacher is the first criteria. Teacher approval letter is must for the supervisor. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. Yes. Ma'am, Mohit this side. हाँ, बोला। Thank you, ma'am, for all the information. I have a question, ma'am. I have just passed my MBA. Yes. And due to Corona, that university is not able to deliver the degree to us. So what we can do? प्रोविजनल डिग्री के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन कर दीजिए। यू may apply for the provisional degree, वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो एक बात बताना भूल गई मैं कि आपको जो भी सभी के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको आपके डिग्री वैलिडिटी जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नागपुर यूनिवर्सिटी की अगर है तो नागपुर यूनिवर्सिटी से, अगर बाहर की यूनिवर्सिटी से तो उनकी यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरिफिकेशन करना ही है सभी को। रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन आपको ये देने हैं। ठीक है? अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। देखिए उसकी वेरिफिकेशन करके वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। हेलो मैम। यस मैम, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन। बहुत अच्छे से बताया, मतलब कोई भी चीज आपने अपने तरफ से नहीं छोड़ी। इट मेड अस थिंक कि हाँ क्या पूछे। मैम, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने 2018 में रजिस्टर किया था पीएचडी के लिए, तो हम उसमें जो है हमें 2 कॉन्फ्रेंसेस थे और पेपर एक प्रेजेंटेशन था। तो मैम उसमें मेंशन नहीं है कि स्कोपस का होना चाहिए या फिर
तो गुड क्वेश्चन मैडम, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि किसी ने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए करके। मैडम ऐसा है कि जिस डायरेक्शन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे आपका हुआ है 2016 में हुआ है तो 2016 का आपको डायरेक्शन लगेगा। 18 तो 2017 17 आपको लगेगा था डायरेक्शन नंबर 37 17 का 2017 का, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जो दिया हुआ है वहाँ पे जर्नल्स में भी पीयर रिव्यू कमेटी, पीयर रिव्यूड जर्नल्स चल रहे हैं 2017 के डायरेक्शन से, और वहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं कि फर्स्ट ऑथर होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि यूजीसी केयर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो डायरेक्शन में दिया हुआ है 2017 की वही लगेगा। अच्छा, तो मैम बच गए, मतलब स्कोपस का वो नहीं है ना? आपको नहीं है, लेकिन मैडम आपके लिए हमारे कॉमर्स मैनेजमेंट में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन साइंस में बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनका रिसर्च वर्क उनके सुपरवाइजर उनके नाम से पब्लिश करते हैं करके, तो उनके लिए ये डाला हुआ है। अच्छा मैम, मेरा दो तीन सवाल और हैं प्लीज, क्योंकि मुझे आप मैम, एक तो दूसरा है कि एक तो मैम मेरे ख्याल से बहुत लोग चाहेंगे, हम तंग नहीं करेंगे आपको, अगर आप अपना नंबर दे सके प्लीज। आई मीन नंबर पूरा मैडम के पास है, दिनी मैडम से आप कभी ले सकते हैं, लेकिन आप सभी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डिक्टेशन देती हूँ 9970। मैं यहाँ पे एक बार चैट बॉक्स में टाइप करती हूँ, ठीक है। Madam, you can share your email address also for their convenience. ओके, थैंक यू। 9970934336 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और ईमेल है medha.kanetkar@gmail.com। अच्छा मैम मेरे क्वेश्चन एक दो और हैं। मैम एक ये पूछना था कि जैसे हमारा सारा सबमिशन जैसे हो जाता है तो तो कितना समय लगता है डिग्री मिलने के लिए? जैसे मैंने अभी बताया काउंट करते चाहिए, मैंने अभी काउंट करते करते 120 डेज तो वैसे ही काउंट कर दिए थे। लगते और 30 डेज म्हणजे 150 डेज मिनिमम। 6 मंथ्स तो पकड़ ही लीजिए कि आपको लगेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जो मैंने बोला ना कि तीसरा वाला जो है बहुत तंग करता है हमको हमेशा। तो वो तीसरे वाले के लिए रुकते थे अभी तक, लेकिन इस डायरेक्शन में वो भी निकाल दिया है 2 का। तो लेकिन कंसेंट लेटर जल्दी नहीं भेजते हमारे जो वैल्यूअर्स है ना, उनसे कंसेंट लेटर जल्दी नहीं मिलता, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। कंसेंट अगर जल्दी मिल गया विदिन 15 डेज तो विदिन 45 डेज उनको मिल जाता है, और अगले 45 डेज में हमको रिपोर्ट मिल जाता है। अच्छा मैम, अगर गाइड हमारे रिटायर हो गए इस बीच जैसे, लेकिन मेरा अभी टाइम है, लेकिन वो रिटायर हो गए और वो कहीं और शिफ्ट हो गए, तो मैम इस केस में क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, आपको गाइड सुपरवाइजर चेंज के लिए एप्लीकेशन आरएससी के थ्रू देनी है। अगर वो गाइड है एनेबल है तो उनकी साइन लगेंगी कि नो ऑब्जेक्शन, उनका कि कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैम अगर उनको ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन अगर दूसरे जगह चले गए या फिर अवेलेबल नहीं है। Reshma ma'am, please you call her and ask your these detailed queries, because we have so many questions in line. Okay, very important questions. Please madam. Thank you so much. और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कोई स्कॉलरशिप स्कीम है क्या? तो हाँ है, SC ST NT कैंडिडेट के और डिसेबल कैंडिडेट के लिए वहाँ पे हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी दी हुई है, UGC ने भी दी हुई है स्कॉलरशिप। आप सर्च करते रहिए, वेबसाइट पे मिलेंगी, और आपके प्लेस ऑफ रिसर्च के जो हेड है वो भी आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। ओके मैडम, few questions we have in the WhatsApp group. एक उसमें क्वेश्चन आया है कि what should be done in case of sudden demise of the guide? हाँ, तो उसके लिए आरएससी के सामने आपको वो देना है, एप्लीकेशन देनी है कि अगर ऐसे हुआ है एक दो केसेस हमारे इसमें भी हुए हैं, तो आरएससी के सामने हम लोग पूरा दे सकते हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा के आरआरसी को भेज देंगे, और जो भी आपके सेंटर पे अगर गाइड अवेलेबल है तो सेंटर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा दूसरा गाइड, अगर नहीं है तो बाहर से भी आप ले सकते हो।
ये डायरेक्शन में जो 2011 का डायरेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप बाहर से ले सकते हो गाइड। ठीक, thank you ma'am. Another question, if there is no seat available in a particular research center, yes, then candidate can register at different place with a guide from another place. ऐसा हो सकता है क्या? गाइड और सेंटर अलग अलग है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी डायरेक्शन में दिया हुआ है कि अगर वो पीजी टीचर है तो जी, हाँ, अगर पीजी टीचर है, रिकॉग्नाइज्ड गाइड है और दूसरे सेंटर में जगह है और दूसरी सेंटर वहाँ उनको लेने के लिए रेडी है, वो कैंडिडेट को और वो गाइड को, और वो दूसरे सेंटर में भी जगह है, उनके एग्जिस्टिंग जो रिसर्च सुपरवाइजर है उनको अलॉटमेंट होने के बाद भी अगर रिसर्च सेंटर पे कुछ सीट्स खाली रहती है तो दूसरा रिसर्च गाइड वहाँ पे रिसर्च सुपरवाइजर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन वहाँ की रिसर्च हेड की लगेंगे। अच्छा। Another question is, मेरे ख्याल से आपने इसको आंसर कर दिया। Is there any fellowship available from RTMNU for non-net set candidates? नेट सेट का यहाँ पे कोई ही नहीं, नेट सेट कैंडिडेट्स को तो फेलोशिप मुझे लगता है मैडम ये नेट JRF की बात कर रहे हैं कि अगर उनको फेलोशिप नहीं है तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फेलोशिप? नहीं, फेलोशिप वगैरह नहीं है, स्कॉलरशिप है सिर्फ, और वो भी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। And one more question, if someone is unable to give one seminar, one progress seminar, or submit any progress report, then in that case, what is the provision in the RTM Nagpur University? देखिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो ये ना इंटरनल मैटर है, जो प्लेस ऑफ रिसर्च जो है वहाँ के हेड के ऊपर है कि उनका अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है, उनके जो वो दे रहे हैं कि क्या कॉजेस से, किस कारण वो नहीं दे पाए उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगर वो जेन्युइन है तो रिसर्च स्कॉलर को अलाउ कर सकते हैं और एक साथ दोनों दे सकते हैं, यानी अगर उनका एक या दो मिस हो गए तो एक साथ उनके सबमिट कर सकते हैं पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। मैडम और एक क्वेश्चन है कि if a candidate is working as CHB, बोलिए। if a candidate has taken up CHB job at a college, मतलब CHB करके एब्जॉर्ब हुआ है, तो क्या वो फुल टाइम PhD कर सकता है इसके साथ में? अगर उसको अप्रूवल मिल रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी का तो उसको पार्ट टाइम करना पड़ेगा। अगर अप्रूवल है तो, अप्रूवल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं। ओके। एंड फाइनली मैडम वन लास्ट क्वेश्चन, आर ad hoc teachers, full time ad hoc teachers eligible to be the guide? नहीं, under the new direction? हाँ, उनके लिए वही है पूरा। और नए सुपरवाइजर को अगर सुपरवाइजर बनना है तो आपको 2 पेपर स्कोपस में देने हैं एज फर्स्ट ऑथर। ठीक है, स्कोप सिर्फ पब्लिकेशन रहा तो हो जाएगा, रेगुलर टीचर मतलब नहीं, रेगुलर चाहिए, 2A 12B में कॉलेज चाहिए, PG टीचर चाहिए, सब नॉर्म्स उनको लगेंगे। ओके, फाइन, थैंक यू मैम। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड, so with the permission of the resource person, I closed on the question answer session. मॅम मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे। अच्छा, पटकन विचारा बंजारी मॅम। मॅम मी भंडारा जिल्ह्यातील आहे, तर रेसिडेंट सर्टिफिकेट मग माझं इकडचंच लागेल ना? नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये येता ना तुम्ही? हो हो, मग काही प्रॉब्लेम नाही येणार। मग आपण जिथलं असेल तिथलंच देणार ना सर्टिफिकेट? नाही, सर्टिफिकेट तुम्हाला हो काही हरकत नाही, नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये आहे तर हरकत नाही असं मला वाटतं ना, तरी पण एकदा आपण विचारू, म्हणजे मी फायनल नका समजू हे आन्सर माझं। तर मी भंडारा जिल्ह्यातील आहे, तर म्हणून विचारत आहे की मग कसं द्यायचं बा सर्टिफिकेट? याच्यावरती बोलू ना, तुम्ही फोन करा मला। बरं ठीक आहे मॅम, थँक्यू। नमस्कार मॅडम। Okay, participants, now if you all have further questions regarding this particular topic, kindly get connected to madam over the phone or through email. Thank you ma'am, thank you for so patiently answering all the questions of all the participants. We now come to the end of this online session, but
Any event is a result of constant support and motivation from several people who work as a cohort for the program. So it is not only customary, but is also my duty to acknowledge and thank each one of them. So I take this opportunity to express my gratitude to Dr. Milind Barhate, Principal, CP and Berar College, Nagpur, and Dr. Prashant Shelke, Principal, Hislop College, for both the collaborating institutes for supporting in every possible way. Thank you, sirs. I thank our resource person, Dr. Medha Kanetkar, for taking up time and patiently explaining all the little details about the procedure and journey called PhD. I also thank our IQAC coordinator, Dr. Pratik Michael, and Dr. Dini Menon, convener, Research Advisory Board, Hislop College, for conceptualizing this program and bringing it to table. I thank all the team members from both the collaborating institute for participating and functioning as a single cohort unit. And finally, I thank all the participants who have made this possible. I wrap up the session with the hope and wish for a brighter tomorrow for all of us. Thank you all. See you all in the future events. Thank you, ma'am. So much. Thank you so much. I am going to end this meeting. Yes, ma'am. Thank you so much.